Today we are going to do our FPISC practical based assessment of physics SSC2. In this single top lecture, we are going to discuss all about the PBA exam, and you can get all the information how to do PBA exams and all the practicals information in this single lecture. So these are the instructions for FPSC PPA exams actually for our new pattern. So our teacher instruction for teachers is this is consist of two parts actually. Part one having 60% of weightage as 6 markers, and the part two has 40% of weightage as 4 markers. Then first we have to discuss this part one of practical exams actually. And our very first problem is very first practical actually is this: to study the effect of length of simple pendulum on the time and hence find g value of g by calculation. एक्चुअली हमें यहाँ पर इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करने की, परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास इसके जो है वो प्रैक्टिकल की परफॉर्मेंस है फिजिकली। ना हमने वहाँ पे जो है वो कोई प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है, ना हमने जो है वो कैलकुलेशंस करनी है, कैलकुलेशंस करनी है, प्रैक्टिकल परफॉर्म नहीं करना। इसलिए हमें सिर्फ ये सीखना है कि हमने कैसे जो है वो वहाँ पे रिटन फॉर्म में प्रैक्टिकल का जो है वो करना है। अब सिंपल पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट है। आप सब सिंपल पेंडुलम से वाकिफ़ हैं कि सिंपल पेंडुलम हमारे पास होता क्या है। एक जो है वो डिवाइस है सिंपल सी, जिसमें आप जो है वो क्या करते हैं जी, आपके पास एक जो है वो स्मॉल मेटल बॉब जो है वो सस्पेंड की हुई होती है बाय एनी मीन्स, बाय एनी कनेक्शन। अब इसमें आपके पास एक सिंपल पेंडुलम होता है, एक स्टॉप वॉच होती है, एक रूलर रिक्वायर्ड होता है वैसे इसमें आपकी इंफॉर्मेशन के लिए। देन आपके पास जो है वो आप टाइम पीरियड मेजर करते हो और लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम मेजर करते हो। और ये लेंथ आपकी वेरी करती है जो है वो जब आप डिफरेंट टाइम्स में अगर आप लेंथ को वेरी करते हो तो आपका टाइम पीरियड आपका जो है वो जो आप मेजर करते हो बाई स्टॉप वॉच वो भी वेरी करता है। इसके बेस पर आप ये डिफरेंट रीडिंग्स जो है वो रिपीट करते हो। फिर कैलकुलेशंस आती हैं। अब कैलकुलेशन की तरफ आते हैं जो हमने पीपीए एग्जाम्स में जो है वो परफॉर्म करनी है। अब सिंपली आप जब टाइम पीरियड फाइंड आउट करोगे तो टाइम पीरियड आपको पता है 2 पाई लेंथ ओवर जी अंडर रूट होता है। इसमें एल लेंथ ऑफ द पेंडुलम है, जी जो है वो कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट है, टू कांस्टेंट है, टाइम पीरियड टी वो टाइम जिसमें वो एक ऑसिलेशन जो है वो मुकम्मल कर रहा है। और अगर हम टाइम पीरियड और लेंथ का रिलेशन लेना चाहें, जैसा कि हमारे फर्स्ट प्रॉब्लम में सॉरी प्रैक्टिकल में जो है वो गिवन है, तो हमारे पास जो स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड है वो प्रोपोर्शनल होता है टू द लेंथ ऑफ द pendulum. It's mean that if we increase the length of the pendulum a single time, then time period will be halved. And if we decrease the length of increase the length of a pendulum 2 times, for example, and increase the length of pendulum 2 times, then this time period will becomes 2 per 2, sorry, then this becomes 4, then this increases 2 times. If we increase the length 1 time, then time period increases 2 times. And then we have to find the value of g. We can also solve this formula for the value of g actually. Then value of g we will get as 4 pi square length over t square by just taking square on both of this equation actually. We can get the value of g like this: 4 pi square L over t square. We don't have to memorize these formulas even. These formulas are given in our practical exam just like this. Just let me show you our PB exam given from FPISC board and model paper. This one is the model paper of Federal Board of Intermediate and Secondary Education for SSC 2 actually. And we have this model paper as given. The total marks has 10 and time for assessment is 45 minutes. And in our section A, we have given the model question: as a student investigate the time period of a simple pendulum for calculation of value of G. Then we have this figure, and the student measured the time of 10 vibration of different length of thread, and we also given the radius of metallic bulb, and we have given this
this table actually. Okay, we have readings, we have length of the thread like this, and radius of the pendulum is also given to us. Then we easily calculate the whole length of the simple pendulum by adding length and pendulum radius. Then we get this length of the pendulum, and we have also given the time period for 10 vibrations every time, and we can also calculate the mean time by just adding these two times divided by 2, and also these two times we already know the formula for average or mean time. We can calculate this one. Then time period is the number of the time required to complete 10 vibrations. Actually, this is the time t and this is the 10 vibrations. Then we calculate the time required for one vibration, this one t. Okay, हम इजीली ये टाइम पीरियड भी जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे जब हमारे पास ये टाइम आ जाएगा टी डिवाइडेड बाई 10। इसके लिए इन दोनों रीडिंग्स के लिए हम कैलकुलेट कर लेंगे। जब आपके पास ये दोनों चीज़ें आ गई, टी टाइम पीरियड, ये लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम, तब आपने क्या करना है, जी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है जैसे कि आप हमारे पहले क्वेश्चन में पूछा हुआ फॉर 1 मार्क। तो 4 कांस्टेंट, 5 कांस्टेंट, टी की वैल्यू आप फाइंड की आपने, लेंथ आपने फाइंड की, आपने सिंपली जी की ये तीनों वैल्यूज कैलकुलेट करके जो है वो यहाँ पे पुट कर देनी है बाय दिस फार्मूला विच इज ऑलरेडी गिवन टू अस। सो इस तरह से हम इजीली जो है वो ये 1 मार्क जो है वो गेट कर सकते हैं। देन हमारे पास है भाई सेकंड इसी का कि फाइंड द परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ जी फ्रॉम द टेबल। व्हाट विल बी द परसेंटेज एरर। अब परसेंटेज एरर, एरर क्या होता है पहले आपको ये समझना चाहिए। एरर हमारे पास ये होता है कि आपकी जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है या एक्यूरेट वैल्यू कह दो, एक्यूरेट वैल्यू से जितना डिफरेंस होता है आपकी मेजर्ड वैल्यू का, उसे हम कहते हैं कि ये हमारे पास एरर है उस वैल्यू में। अगर आप ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं तो आपके पास जो है वो जी की वैल्यू के लिए, ये जी की वैल्यूज आपने फाइंड की, आपके पास मेजर्ड वैल्यू जी की, एक्यूरेट वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, अब उसमें 9.8, तो उसमें से आप जो है वो जब डिफरेंस लोगे तो आपका एरर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमें पूछा हुआ है परसेंटेज एरर। क्या पूछा हुआ है? परसेंटेज एरर। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास एरर आएगा उसे मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देंगे, तो ये हमारा आपके पास परसेंटेज एरर आ जाएगा। तो 1 मार्क ये आप जो है वो इजीली ले लेंगे। ये हमारे पास जो है वो ये फर्स्ट पोर्शन है, फर्स्ट पार्ट का मॉडल पेपर है आपका। फिर सेक्शन बी है सेकंड पार्ट का, उससे पहले हम बाकी की जो है वो प्रैक्टिकल्स डिस्कस कर लेते हैं। बाकी प्रैक्टिकल्स हैं जैसे कि सेकंड प्रैक्टिकल्स और थर्ड है। सेकंड है आपके पास के सीरीज में रजिस्टर्स कनेक्टेड हों तो उनको वेरीफाई करें, और पैरेलल में कनेक्ट हो तो फोर्थ वाला थर्ड वाला पैरेलल रजिस्टर्स को हमने वेरीफाई करना है। अब अगर हमारे पास रजिस्टर्स जो है वो 2 से 3 रजिस्टर्स हों या 3 से 4, और बैटरी और स्विच हो, हम उसे जो है वो एक सर्किट की फॉर्म में कनेक्ट करें, तो हमारे पास 3 चीज़ें रिक्वायर्ड है, एम मीटर, वोल्ट मीटर और कनेक्टेड वायर्स। एम मीटर वोल्ट मीटर से हम क्या करेंगे, हम करंट और वोल्टेज फाइंड आउट कर लेंगे। एमीटर और वोल्ट मीटर से हम करंट और वोल्टेज फाइंड आउट कर लेंगे। कनेक्टेड वायर्स या कनेक्टर्स हैं हमारे पास। अगर हमारे पास सीरीज में कनेक्ट हो, सीरीज में कनेक्ट हैं तो हम वही सेम फार्मूला, हम वोल्टेज मेजर करेंगे, करंट मेजर करेंगे और रेजिस्टेंस मेजर कर लेंगे। तो अब हम एक और बात, जब सीरीज में कनेक्ट करते हैं हम रेजिस्टर्स को, फॉर एग्जांपल रेजिस्टर्स को हम इस तरह से भी जो है वो डिनोट करते हैं, और सिंपली रेक्टेंगुलर बॉक्स से भी हम डिनोट करते हैं, इस तरह से रेक्टेंगुलर बॉक्स बना के। ये भी रजिस्टर की सिंबल है, ये भी रजिस्टर की सिंबल है। अगर हमने इस तरह से सीरीज में एक जो है वो लाइन में कनेक्ट किए हुए हैं, तो हमने ये पढ़ा है कि इनमें हमारे पास जो है वो करंट सब में सेम रहता है। करंट विल रिमेन सेम इन सीरीज कनेक्शन, ये हमने पढ़ा हुआ है। उसके बाद पैरेलल में अगर कनेक्ट किए हुए हैं, पैरेलल में कनेक्ट किए हुए हैं तो ये तीनों चीज़ें आप, और उसकी रेजिस्टेंस, वोल्टेज और करंट जो है वो मेजर कर लोगे बाय यूजिंग ओम मीटर, वोल्ट मीटर एंड एम मीटर। उसके बाद इसकी कैलकुलेशंस हैं। अब हमने तीनों की रेजिस्टेंसेस तो कैलकुलेट कर ली, अब रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करोगे, हमने जो ओहम लॉ पढ़ा हुआ है वी इज इक्वल टू आई आर। रेजिस्टेंस यहाँ से किसके इक्वल आ जाएगी, वी ओवर आई के। अब यहाँ से जब आप वोल्ट मीटर से वोल्टेज भी फाइंड आउट कर लोगे, करंट भी, तो आप इजीली रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हो। जैसा कि हमारे पास वोल्टेज जो है वो 20 आए, करंट जो है वो 10 आए, तो आपके पास रेजिस्टेंस कितनी आ जाएगी जी, 2 ओहम। 2 ओहम। बट आपके पास ये चीज़ें गिवन होंगी, वोल्टेज और करंट गिवन होगा, आपने उसको रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी होगी। तो
आपने क्या करना है, तीनों या जितने भी रेजिस्टर्स कनेक्ट होंगे उनके रेजिस्टेंसेस फाइंड आउट करोगे। सीरीज में कनेक्ट हैं तो सिंपली फार्मूला सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंसेस। और अगर पैरेलल में कनेक्ट हों, पैरेलल में कैसे कनेक्ट होते हैं आपने ये भी पढ़ा हुआ है। इस तरह से जब रेजिस्टर कनेक्ट हों तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास साइड बाय साइड या पैरेलल कनेक्शन में है। उसके बाद अगर आप पैरेलल में कनेक्ट हैं तो हम टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल द रेजिस्टेंसेस ले लेते हैं। इसके लिए हमें जो है वो क्या करना पड़ता है। अब मिस्टेक कहाँ करते हैं बच्चे, मिस्टेक आप करते हो बेटा कि आप टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करते हो। फॉर एग्जांपल इन सब से आपकी टोटल रेजिस्टेंस आ गई 5/2, तो आप एज इट इज़ ये नहीं लेते हो क्योंकि ये तो रेसिप्रोकल होता है। हम फिर क्या करते हैं, टोटल रेजिस्टेंस आर टी अगर यहाँ से हम देखें तो ये हमारे पास 5/2 था तो 2/5 आ जाती है। तो ये आप रेजिस्टेंस आंसर में लिखते हो। ये हमारे पास सेकंड और थर्ड आपके प्रैक्टिकल्स हैं फ्रॉम पार्ट ए। फिर आपके पास फोर्थ प्रैक्टिकल है फाइंडिंग रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर बाय हाफ रिफ्लेक्शन मेथड। इसमें सिंपली आप इसका जो है फार्मूला याद रखो। आपके पास वैल्यूज गिवन होंगी, आपने सिर्फ वैल्यूज पुट करके जो है वो आपने ये फाइंड आउट कर लेनी है रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर। अब गैल्वानोमीटर आप सबने जो है वो वैसे देखा हुआ, अगर आपके पास डायग्राम उसकी मेंशन हो आपके असेसमेंट में तो इस तरह से आपके पास डायग्राम होगी कोई। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 0 है, ये 5 10 5 10 इस तरह से। अब ये डिफ्लेक्शन क्या है कि ये आपकी नीडल जो है वो गैल्वानोमीटर की तरह से डिफ्लेक्ट करती है फ्रॉम बोथ हैंड्स। अब हमें इसमें क्या क्या चाहिए, हमें सिर्फ इसमें जो है वो वोल्टेज और करंट चाहिए। ठीक है, वोल्टेज और करंट आपके पास जो है वो गिवन होंगे, आप या फाइंड आउट कर सकते हैं आप जो है वो एमीटर और वोल्ट मीटर से। अब जब फाइंड आउट कर लोगे तो गैल्वानोमीटर की जो आपके पास होगी डिफ्लेक्शन होगी या रेजिस्टेंस होगी, वो हम कैसे फाइंड करते हैं, क्योंकि अगर फुल स्केल डिफ्लेक्शन आती है तब हमारे पास जो है वो वी लेते हैं हम। ठीक है, तब हमारे पास रेजिस्टेंस फॉर एग्जांपल होती है V/I। लेकिन जब हाफ डिफ्लेक्शन हम कह देंगे मींस हाफ ऑफ द वोल्टेज आर यूज्ड इन इट, तब हमारे पास गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस जिसको हम G से डिनोट करते हैं वो हाफ ऑफ द वोल्टेज बाय करंट I आ जाती है, जैसे ये फार्मूला हमें गिवन है। इस तरह से आप इस फार्मूला को यूज़ करते हुए गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस जो है वो इजीली फाइंड आउट कर लेते हो। उसके बाद हमारे पास फिफ्थ एंड लास्ट प्रैक्टिकल ऑफ द पार्ट 1 है, पोर्शन 1 आपका जो 6 मार्कर है उसका, कि हमने ओहम लॉ को वेरीफाई करना है। ओहम लॉ को वेरीफाई करने के लिए आपको ओहम लॉ का पता होना चाहिए। ओहम लॉ क्या होता है, वोल्टेज और करंट जो है वो प्रोपोर्शनल होते हैं या V/I R, ये ओहम लॉ हम सब ने पढ़ा हुआ है। उसमें हम कैसे वेरीफाई कैसे करते हैं, हमारे पास वोल्टेज और करंट की वैल्यूज़ गिवन होती हैं। हम क्या करते हैं, वोल्टेज और करंट की वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लेते हैं और उसे ग्राफ की फॉर्म में प्लॉट करते हैं। अगर तो हमारे पास वो फॉर एग्जांपल ये एक्सिस के अलोंग वोल्टेज और एक्स एक्सिस के अलोंग जो है वो करंट है, तो अगर तो ये एक इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है तो हम कहते हैं कि ये प्रोपोर्शनल है वी ओवर आई। वी और आई एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं।